Hello my dear student, this is Yasser Azam. Today I am going to take the lecture on the topic control and coordination. This is the second part of the chapter control and coordination. I have started control and coordination from plant control, plant movements. Okay, there will be 4 or 5 parts completing the chapter. In this part we will study about the plant hormone. In first video we have discussed about the types of movements like phototrophic, and different type of tropism we have studied, like geotropism towards gravity or against gravity. So I hope the chapter would be very clear, means that topic would be very clear to you people. But if in case you find any confusion, you can ask me in comment section. दूसरी बात, few of the students get very much panic and confused with the terms in biology. They feel biology is a very difficult subject. So my dear student, it is happening so because the terms are not very familiar with you. You are not using it in your daily life. The terms are little bit different. They are not difficult, they are different. So you need to read book twice and thrice, and you need to understand the basic lines what they are saying. It is very easy. Bio is very interesting and easy subject because it is related to somehow our lives. Okay, so just broaden your horizon of thinking, and then you will be getting a better understanding for the chapter. So we'll be starting with plant hormone. This is looking really messy, but when you will take a screenshot and zoom it, you will find it very fruitful for you. Okay, so what are plant hormones? Till now we have seen the response of plant towards the stimulus, but along with that kind of movements, plant have some chemicals. What chemicals? They are basically messengers which tells the plant to respond. भाई वो एक जगह पे खड़े हुए, they are not doing activities like we are doing. They do not need that much energy as we need because of the complicated system as we have. But even though they need some of the energy because they need to grow, they need to elongate in their side, they need to produce the fruits and vegetables. So for that they need different hormones to trigger their different requirements like growth. Extra growth ना हो जाए उसके लिए inhibitors भी हमें चाहिए. So plant hormones क्या है? Those chemical messengers which help a plant to grow in a proper way, disciplined way. ये भी नहीं कि बहुत बड़ा हो गया, ये भी नहीं बहुत छोटा रह गया, उसकी जो optimum growth है उसके according उसमें वो hormones role play करते हैं. So on that basis we can say there are two types of hormones in plant. Number one, growth promoters. Next is growth inhibitors. Ethylene, the space was not there, I have written ethylene here. It is growth inhibitors. Promoters, basically 3 hormones are there: auxin, gibberellin and cytokinin. When you will read reference books तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे cytokinin का function auxin से मिलता है, auxin का cytokinin से मिलता है, cytokinin का gibberellin से मिलता है. It is because they work in coordination. The chapter name is itself coordination, to coordinate. So various chemicals like hormones, they work in coordinated way. They support each other. They act as a team. So sometimes you might get a single hormone performing more than one function, or 2 hormones performing a common function. Okay, so we'll be starting with auxin. बेटा auxin के लिए questions आपसे one word question आ सकते हैं, multiple choice. No doubt from this chapter, from this topic you will get a multiple choice question for sure. But till now, just concentrate. ऑक्सिन का पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी क्या होता है? किसी भी फ्रूट का डेवलप हो जाना बिना फर्टिलाइजेशन के. फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट के बगैर डेवलपमेंट हो जाना. ये सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑक्सिन का. इसके अलावा जो ऑक्सिन का मेन रोल है वो है आपकी इलोंगेट करना टिप्स को. जैसे रूट टिप है, शूट टिप है, उनका इलोंगेशन, उनकी ग्रोथ. सो बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट हो गए? टिप्स पे. रूट की और शूट के टिप्स पे प्रेजेंट होंगे. इनका काम ही है रूट की इनिशिएशन करना. ठीक है. एंड दैट इज व्हाई दे आर एपिकल डोमिनेंस. दे आर प्रेजेंट एट एपिक्स. सो वहाँ पे डोमिनेट करते हैं, अपनी प्रेजेंस को डोमिनेट करते हैं. एज अ रिजल्ट द प्लांट्स ग्रो एट एपिक्स, वेदर एट शूट एपेक्स और रूट एपेक्स. नेक्स्ट है बेटा हमारा इसका फंक्शन इलोंगेशन एंड ग्रोथ. आई हैव टोल्ड ग्रोथ मीन्स प्राइमरी ग्रोथ की बात हो रही है. दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो प्राइमरी ग्रोथ की बात करते हैं प्लांट की. ठीक है. सेकेंडरी उसकी चौड़ाई का बढ़ना है. प्राइमरी मतलब उसकी हाइट बढ़ना, एलोंगेट होना, साइड्स का बढ़ना. ठीक है. इसके अलावा इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी. सीड डोरमेंसी क्या होता है? हमारे घर में गेहूं आता है, जब तक उसको हम दोबारा से बोए ना सो ना करें, then till then it will remain like this only. But when you provide it favorable condition, you provide some moisture in soil to this particular seed, you will see after some time it start germination. So who is stopping that germination to occur
not to occur. Seed dormancy. Seed dormancy is basically promoted by auxins, and it helps in natural detachment of the leaves which are grown up. This function occurs by abscisic acid, but now auxin also play a role in some time doing natural detachment of the leaves. Now the next is our जिब्रेलिन. जिब्रेलिन का बेटा काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन स्टेम इलोंगेशन. बात कर रहे थे अभी हम किसकी? जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे तो हमने देखा था ये भी इलोंगेशन और ग्रोथ में हेल्प कर रहा था. तो ऐसा नहीं है कि एक हार्मोन जो काम कर रहा है दूसरा वो हार्मोन काम नहीं करेगा. इतना डिटेल में बताने की जरूरत इस वजह से पड़ रही है कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं. Otherwise, this topic is really very simple. You need to write the names of the hormone on a page, write their functions. You will be taking only 5 or 10 minutes to do so, and within half an hour you will get it done. Okay, and this gibberellin also, along with stem elongation, it helps in leaf expansion. Leaf का चौड़ा हो जाना, leaf expansion में भी gibberellin help करता है. इसके अलावा they induce flowering. प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है, खूबसूरत सा फूल निकल आता है, ब्यूटीफुल फ्लावर ब्लॉसम्स, इट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन जिब्रेलिन. Along with that, it also helps in breaking the dormancy. Means auxin and gibberellin are common in breaking the dormancy and shoot elongation. Till now we have studied it. Then seed germination. आप देखिए क्या बात आई कि it is okay. Breaking the seed dormancy का मतलब ही क्या हुआ भाई? अगर हम किसी चीज की डोरमेंसी तोड़ रहे हैं इसका मतलब we are promoting it to grow. जर्मिनेशन की हेल्प कर रहे हैं तो इट ऑल्सो हेल्प इन जर्मिनेशन. अब ऑक्सिन से ये कहाँ पे डिफरेंस हो गया? ऑक्सिन breaks the dormancy but don't play a major role in seed germination. Instead, gibberellin also helps in breaking the dormancy. Along with that, it also helps in seed germination. ठीक, अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं? ग्रोथ ही तो कर रहे हैं भाई. अगर कोई चीज बढ़ रही है साइज में, इट इज ग्रोइंग. जस्ट लाइक वी आर हैविंग ग्रोथ हार्मोन्स, वी आर ग्रोइंग, बट आफ्टर सर्टेन एज वी डू नॉट ग्रो. वैसा नहीं कि इसके बाद में इतना लंबा हो जाएगा, खली बन जाऊंगा. नाउ इट इज फिक्स्ड. वो कैसे होता है? टेल यू ह्यूमन हार्मोनल सिस्टम. Then cytokinin. Cyto means cell, kinin means breakdown, समझ लीजिए. Cytokinin means the hormone which help in cell division, सेल को तोड़ने में. पर यहाँ पे तोड़ने का मतलब डिस्ट्रक्टिव नहीं है. Here the term breakage means constructive. अगर हम बात करते हैं घर टूटा, तो घर टूटा डिस्ट्रक्शन हुआ, सुनामी आई, घर टूट के तहस नहस, अर्थक्वेक आया, घर ढह गया. मगर अगर हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेक ऑफ सेल, सेल डिवीजन, यहाँ पे प्रोडक्टिव बात हो रही है, कंस्ट्रक्टिव बात हो रही है बेटा. ये एक पॉजिटिव साइड. ओके, सो साइटोकाइनेस इंड्यूसेस सेल डिवीजन. पहली बात, सेल डिवाइड हो गई. पर क्या सारी सेल एक ही काम करेंगी भाई? जो लीफ की सेल है उन्हें क्या करना है? ट्रांसपिरेशन करना है. रूट की सेल है उन्हें एब्जॉर्प्शन करना है. तो ये काम स्पेसिफिक कैसे होगा? जब उनकी कोई आइडेंटिटी, कोई डिफरेंशिएशन हो जाए. तो साइटोकाइनिन परफॉर्म दिस फंक्शन आल्सो. फॉर नंबर 1, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन. अलोंग विद इट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल डिफरेंशिएशन. अलग अलग सेल का अलग अलग काम है. जाइलम पानी ले जा रहा है, फ्लोएम फूड ले जा रहा है, लीव्स स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं. सो दिस डिफरेंशिएशन इज डन विद द हेल्प ऑफ cytokinin, and it also helps in delaying the plant age. सेनेसन इसको रोकता है, प्लांट को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता है. और कुछ ऐसे हैं जो कॉज भी करते हैं सेनेसन, जैसे एब्सिसिक एसिड. ये दुश्मन है, दोस्त है प्लांट का. ओके, एंड इसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया. जिब्रेलिन और ऑक्सिन प्राइमरी ग्रोथ कर रहे थे, साइटोकाइनिन जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, थिकनेस बढ़ा देगा प्लांट की. इसके अलावा इस सप्रेसेस द एपिकल ग्रोथ. अब ऐसा नहीं कि एपिकल ग्रोथ हुई, होती चली जा रही, आसमान में पेड़ चला गया. कौन सी एक मूवी है हॉलीवुड की, जायंट करके कुछ, इतना लंबा प्लांट बन जाता है कि वो आसमान में चला जाता है. ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो क्या करता है? एपिकल ग्रोथ को रोकता भी है साइटोकाइनिन. तो ये 3 हार्मोन्स हो गए बेटा हमारे कैसे? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटर्स. अब हम बात करेंगे ग्रोथ को रोकने वाले 2 हार्मोन्स और हैं. बेसिकली सिर्फ 5 हार्मोन्स के ही बारे में आपको पढ़ना है. और जुगाड़ बता दे, शॉर्टकट बता दे. केज, केज मतलब पिंजरा. और केज, ए फॉर एब्सिसिक एसिड, और केज से आपके ये सारे निकल आएंगे. क्या है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड इथिलीन. याद हो जाएगा. केज, 5 हार्मोन्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे. इथिलीन की जब बात करते हैं तो इट इज द ओनली हार्मोन इन द प्लांट विच इज फाउंड इन गैसियस स्टेट. ओके, so question आ सकता है ethylene is found in dash state, so you will answer gaseous state. Number 2, it's help in food, fruits ripening, फलों को पकाने के भी काम आता है.
सीड डोरमेंसी ब्रेक करता है। सीड डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए तो सारे के सारे ही रिस्पॉन्सिबल हो गए, जो चारों हमने अभी तक पढ़े। इसके अलावा ये स्टेम इलोंगेशन को रोकता है। अब ये भी नहीं कि स्टेम इलोंगेट हो रही तो होती चली जा रही है, तो हु इज एक्टिंग एज अ इनिबिटर। सो यहाँ पे इनिबिटर की तरह काम कर रहा है हमारा इथिलीन, विच इज अ गैसियस हार्मोन। And one more thing very important about it is that it causes the aging, senescence करता है, aging factors प्लांट में लाता है, प्लांट बूढ़ा होने लगता है। नेचुरल सी बात है, जब बूढ़ा होगा तभी मरेगा, तो उसकी एज भी तो होनी चाहिए। तो अब अगर यहाँ पे तो एज प्रमोट कर रहे हैं, एजिंग को रोक रहे हैं हमारे जो ये साइटोकाइनिन प्लांट्स हैं, ठीक है, डिले कर रहे हैं एजिंग को, तो ऐसा होगा तो प्लांट तो हमेशा जिंदा रहेगा, ठीक है। तो उसको मारना भी इस वजह से प्लांट प्रोड्यूसेस इथिलीन आल्सो which causes aging of senescence। हमारा लास्ट आ जाता है और सबसे ही खलनायक और खतरनाक हार्मोन which is abscisic acid। Abscisic acid is also called as growth inhibitor hormone of the plant। It is also represented as ABA। ओके, इसका काम क्या क्या होता है? जब फ्रूट राइपन हो गया, भाई राइपनिंग का काम तो हमारा इधर से हो गया, किसने कर दिया था फ्रूट को राइपन? फूड वॉज राइपन बाय इथिलीन। अब वो प्लांट से अगर अटैच नहीं होगा तो सड़ जाएगा, तो प्लांट से अटैच हो जाए। प्लांट का पर्पस ये नहीं होता कि अटैच हो जाए और हमारे मुंह में चला जाए, कि एडिसन के सर पे गिर जाए, बल्ब बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो काम होता है कि वो फ्रूट नीचे जाए और सीड डिस्पर्स हो जाए और दोबारा से वहां पे प्लांट निकल आए। तो वो प्रोसेस करता कौन है? हमारा एब्सिसिक एसिड। व्हाट इट डू? इट हेल्प्स इन wilting of leaves also। when leaves get older or wilted, then it detaches the leaf। along with that it helps when fruit drop or you can say separates the fruit। okay, separation का काम करता है। और एक चीज मैंने ऑक्सिन जिब्रेलिन के बारे में नहीं बताई। ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन बोथ ऑल टुगेदर हेल्प इन फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। राइपनिंग की बात जहां पे आएगी बेटा, आपके जहन में आ जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं इथिलीन की, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात आ जाएगी देन ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन दे बोथ टुगेदर हेल्प्स इन फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम एब्सिसिक एसिड की बात कर रहे थे, लीफ ड्रॉप, फ्रूट ड्रॉप हो गया। इसके अलावा सीड डोरमेंसी भी कॉज करता है एब्सिसिक एसिड। नाम से इनिबिटर्स है, इनिबिटर मतलब नेगेटिव। इसको आप कसौटी जिंदगी की कमौलिका समझे। इट विल डू ऑल द नेगेटिव एक्टिविटी, हर जगह नेगेटिविटी ही फैलाएगा। इट विल कॉज सीड डोरमेंसी, इट विल इनिबिट द ग्रोथ, इट विल डिटैच द लीव्स। इसके अलावा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। कमोनिका और स्ट्रेस एक ही बात है। Stress hormone, why? Because it closes the stomata when there is a lack of water in the plant body। okay, that is why it is also called as stress hormone। this is very basic about plant hormone। hopefully आपको समझ में आया होगा। very simple। make a chart, take a screenshot of the chapter, of the topic, very easy to understand। draw it in your copy and learn, underline the important words। and in upcoming video we will be studying about human brain, which is made up of and spinal। so wait for the upcoming video। till then keep studying, keep working hard, keep raising the banner of a school। love you students।